گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ فرماتے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے دو ہو جائیں۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے، نہ سوتے رات گزر دائی ہو بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے۔ کہ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، کہ تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے، پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بننا ہے، 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو، بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا۔ 6 نمبر یاد کر لینا یہ اچھی بات ہے، لیکن 6 نمبر کی حقیقت کا آ جانا، اصل یقین بدل جائیں، غلط یقین دلوں سے نکل جائیں، صحیح یقین دلوں، محنت سے مال، مال سے چیزیں، چیزوں سے زندگی کا بننا، عہدے سے عزت، زمینوں سے غلے، دوائیوں سے صحت، یہ غلط یقین۔ صحت اللہ دیتے ہیں، محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں سے حاجت پوری نہیں ہوتی، دوائیوں سے صحت نہیں ملتی، عہدے سے عزت نہیں ملتی۔ اس لیے فرمایا سب کچھ اللہ کے کرنے سے ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتے، گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، وہ بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، وہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم تم سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، رزق میں دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا ذرا بازو میں طاقت آ جاتی ہے نا، مول صاحب آپ کو تو مل جاتا ہے، ہم تو کما کر کھاتے ہیں۔ ذرا پیچھے چلے جائیں کہ ماں کی گود میں پیشاب پاخانہ نکل جاتا تھا، اس وقت کون کماتا تھا؟ اور پیچھے جائیں جب ماں کے پیٹ میں ناپاک خون خوراک تھا، اور پیچھے چلے جائیں سبزی اور غلوں میں انسان پھیلا ہوا، اور پیچھے چلے جائیں زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں، بارش کے قطرات میں، زمین کے ذرات میں، اور دوستو کھاد کی گندگی میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ انسان تجھے دیکھنے سننے والا تو ہم نے بنایا، تیرا تو وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ بارش کو برساتے ہیں، پھر کھیتیوں کو اگاتے ہیں، پھر ماں باپ کھاتے ہیں، پھر پانی پر تصویر بناتے۔ یہ انسان 2 دفعہ تو نکلا تو پیشاب کے راستے سے، پھر اکڑتا ہے۔ پانی پہ تصویر بنا سکتا ہے کہ دنیا کا انسان؟ پانی پہ جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، لوتھڑے میں ہڈیاں، اور ہڈیوں پر گوشت، اور گوشت پر گوشت۔ ایک دن کے بچے کو دودھ پینا کون سکھا؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں، ایک دن کے بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتے۔ 4 مہینے کو اللہ روح ڈالتے ہیں بچے میں، نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا۔ ایک دن کے بچے کو دودھ پینا سکھا سکتا ہے کوئی؟ ماں کی چھاتی سے اللہ گرمی میں ٹھنڈا دودھ پلاتے ہیں، سردی ہو تو گرم دودھ پلاتے ہیں، چھوٹا ہو تو پتلا دودھ پلاتے ہیں، بڑا ہو جائے دودھ کو گاڑھا کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں بھائیوں، بچہ چھوٹا ہے رو رہا ہے تو پیٹ کو ہاتھ لگاتا ہے، تو کان کو ہاتھ لگاتا ہے، یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ بچوں کی محبت نہ ڈالتے ماؤں کے دلوں میں تو بچے تڑپ تڑپ کر مر جائے، اور ماں ساری ساری رات لے کے اور یہ بڑا ہو کر ماں کو پانی بھی نہیں دیتا، آگے سے اکڑتا ہے والدہ کے سامنے۔ دوستو پھر کو بھائی اگر اخلاق صحیح ہو گئے تو تبلیغ چلے گی، اور اخلاق صحیح نہیں، گھر بیٹا ہے تو ماں باپ کا فرما بردار بنے، ماں باپ ہیں تو بچوں پر شفقت کریں، گھر والی ہے تو خامد کی تعظیم کریں، خامد ہے تو بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک آدمی بیوی سے روزانہ لڑتا تھا، نمک ٹھیک نہیں، مرچ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، اللہ کی شان بیوی کی دعا قبول ہو گئی، تبلیغ والے لے گئے اسے تبلیغ میں 3 دن کے لیے۔ پہلے زمانے میں نا تبلیغ کا کام نہیں تھا، تبلیغ والوں کو نا جگہ جگہ مار پڑتی تھی، طبیعت سب کی صحیح رہتی تھی۔ اب جگہ جگہ اکرام ہو رہا ہے، اب لوگ کہہ رہے ہیں برتن نہیں کھولنے، اور امیر صاحب کہتے ہیں نا اپنا پکانا ہے تو ساری جماعت ایک ہو جائے، امیر صاحب ان کا دل نہ دکھائیں،
इनको खाना पकाने दें, पता नहीं अपना दिल दुखेगा या मकामी लोगों का दिल दुखेगा। अच्छा खाने का जज्बा और पैसे बचाने का जज्बा अच्छा नहीं है। वो जो शहरोजे में गया, वो जो बीवी से रोज लड़ता था, वहां लग शान अमीर से उस जमाने में सिलेंडर भी नहीं थे, या तो जंगल से लकड़ी चुन के लाओ या मिट्टी के तेल के चूल्हे पतियों वाले। वहां जो अमीर साहब ने तरगीब पे खिदमत कौन करेगा? वही जो लड़ाका था ना, जो रोज लड़ता था बीवी से, उसने कहा अमीर साहब मैं करूंगा। करो भाई खिदमत। बेचारे कहीं से सब्जी लाए, कहीं से लकड़ियां चुन के लाए, आटा लाए, आटा रोटियां पकाई, सालन, पसीने पसीने हो गए। वो जमात सहरोजे की थी, वो जो उनके सामने खाना रखा वो भी अमीर घराने के बच्चे थे, अच्छा खाने वाले। वो कहने लगा अमीर साहब ये कोई खाना है? इससे अच्छा तो कुएं से पानी निकाल के रख देते, वो ज्यादा अच्छा था। अब इसको बड़ी तकलीफ हुई, कितनी मुश्किल से खाना पकाया है और नतीजा ये मिला है। अब उसको बीवी याद आई कि मैं भी रोजाना ऐसे ही ऐब निकालता हूँ, जैसे मुझे तकलीफ हुई है तो घर वाली को भी ऐसी, तक वो भी इंसान है। वापस आया ना, बीवी ने खाना दिया, कहने लगा आज तो बहुत लजीज खाना पकाया है। बीवी कहने लगी ये तो 3 दिन में ही मुसलमान हो गया, आज तक भी इसने नहीं कहा कि सही खाना पकाया। अच्छा कोई बात फैलानी हो ना मोहल्ले में, औरतों के हवाले कर दो, ये बगैर गश्त के फैला देती। हमें तो गश्त करना पड़ता है ना। पड़ोसन से कहा अरे क्या बताऊं, जब से मेरा घर वाला 3 दिन लगा के आया ना जमात में, वो तो बिल्कुल इंसान बन गया, बिल्कुल नहीं लड़ता, तस्बीह पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, जैसा खाना पका के दे दो बड़ी तारीफ कर। तो अच्छे अखलाक से दीन फैलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक। ये दोस्तों तस्बीह हमारे हाथ में, रोजा हमारे पेट में, नमाज हमारी मस्जिद में और हज हमारा बैतुल्लाह में। इसलिए फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत में, इसलिए फरमाया अगर मेहनत सही होगी, यकीन सही होगा, अमल सही होंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा। अगर मेहनत गलत है तो दोस्तों यकीन गलत होगा, अमल बिगड़ जाते हैं, अल्लाह नाराज हो जाते हैं। हालात ख्वाहिशात पे चलने में लज्जत आती है आदमी को, और आहिस्ता आहिस्ता फंसते फंसते फिर जहन्नम में पहुंच जाता है। जैसे मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने के लिए वो कांटे पर गोश्त लगा देता है, धागा पीछे बांध देता है, दरिया में डाल देता है, छोटी छोटी मछलियां उसके पीछे भागती हैं। वो बड़ी मछली उनको समझाती है अरे इसके पास ना जाओ, तुम्हें ऊपर गोश्त नजर आए, गोश्त के अंदर कुंडी है, कुंडी के पीछे धागा है, धागे के पीछे बंदा है, बंदे के पास छुरी कांटा है, मिर्च मसाला है, तेल कढ़ाई है। जब तू खाएगी तो कुंडी तेरे गले में फंसा देगा कांटा, फिर तू तड़पेगी, छुरी कांटे से काटेगा, मिर्च मसाला लगाएगा और तेल कढ़ाई में भूनेगा और 32 दांतों के नीचे चबाएगा और तेरी हड्डियां कुत्ते के सामने फेंकेगा। दुनिया में गुनाहों में, ख्वाहिशात में लज्जत है वक्ती तौर पर। अब वो समझा के चली गई, बड़ी छोटी छोटी मछलियों के मुंह में पानी आ रहा था, हमें बहका रही है, खुद खाएगी। जैसे कहते हैं मौल साहब बातें, मौल साहब अपनी बातें नहीं करते, वो अल्लाह रसूल की बातें करते हो, तुम्हें मरने के बाद पता चल जाएगा सबको। वो जो मुंह लगाया छोटी मछली ने, लज्जत बहुत आई, खाते खाते कुंडी अंदर चली गई, धागा हिला, शिकारी ने झटका दे के गले में फंसा दी कुंडी, अब तड़प रही है। अब उसने बंदा भी देखा, छुरी कांटा भी देखा, मिर्च मसाला भी देखा, तेल कढ़ाई भी देखी, अब तो फंस गई। जब मौत का झटका लगेगा फिर जहन्नम के सारे सांप नजर, उस वक्त तौबा नहीं कर सकते। मरते वक्त जब फरिश्ता आता है तो सारे मुसलमान, फिरौन भी मुसलमान हो गया था उस वक्त, तब ले आया ईमान में, उस वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं। आज तौबा कर सकती हूँ, आज जिंदगी बदल सकती। जिंदगी आप चाहे ना मैं अपने घर में बैठ के जिंदगी बदल लूं, कभी नहीं हो सकते। माहौल बदलना पड़ेगा, आप मेहनत बदलनी पड़ेगी, यकीन बदलने पड़ेंगे। ये अल्लाह के रास्ते में पता भी नहीं चलता कि जिंदगी सारे नमाज पढ़े, नमाज पढ़ना आसान, सब तस्बीह पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ना आसान, सब सीखना सिखाना कर रहे हैं। वो तो अल्लाह के रास्ते में निकल कर जिंदगी बदलती है आदमी की।
अपना माहौल छोड़ना पड़ा। देखो मक्के वालों ने 13 साल मार गारों पे लिटाया, दावत नहीं छोड़ी, पाँव में रस्सी डाल के खींचा लेकिन दावत नहीं छोड़ी, सीने पर चट्टाने रखी हैं, तड़प तड़प के रूह परवाज हो गई लेकिन दावत नहीं छोड़ी। हजरत जनीरा नाबीना हो गई, दावत नहीं छोड़ी। हजरत सुमैया शहीद हो गई, दावत नहीं छोड़ी। हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटाया जाता था। बताओ, हमें तो चाय ना मिले तो अमीर साहब को आंखें दिखाते हैं हम, वो अंगारों पे लेट कर भी दीन ताबलीग का काम नहीं छोड़ा उन्होंने। दोस्तों, मक्के वालों ने हिजरत की। हजरत तला बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मेरे पड़ोस में एक पादरी रहता, उसने मुझे कहा वो जमाना करीब आ चुका है जिसमें आखिरी नबी का ज़हूर होगा। तो मैं अपने घर से निकला, बैतुल्लाह में आया। मैंने लोगों से मालूम किया कि लोगों कोई नई बात वजूद में आई है। लोगों ने बताया आपको पता नहीं है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब ने नबूवत का दावा कर दिया है और अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर मुसलमान हो गए। तो मैं अपने घर से निकला, बैतुल्लाह में आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गया। हजरत अबू बकर मुझे हजूर की खिदमत में लेकर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दावत दी, मैं कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गया। बयान करते मेरा मुसलमान होना था कि काफिरों के मजमे ने मुझे पकड़ा और पकड़कर मेरे हाथ मेरी गर्दन से बांधे। पीछे पीछे मजमा है और आगे आगे हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह हैं और एक औरत है जो उनको बुरा भला कर। लोगों ने पूछा ये कौन है? तो तलहा बिन उबैदुल्लाह हैं। तो लेकिन इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये बेदीन हो गए, यानी मुसलमान हो गए, इसने नया दीन अख्तियार कर लिया है और बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। फरमाइए औरत कौन है जिनको बुरा भला कह रही है? ये इनकी वालदा है। जो मुसलमान होता था वो मुशक्कत में आ जाता था। हजरत अय्याश रजी अल्लाह ने मुसलमान होकर मक्के से मदीने चले गए। वालदा उनकी मक्के में रह गई। वालदा उनकी बड़ी कहने लगी जब तक मेरा बेटा अय्याश वापस नहीं आएगा ना मैं खाना खाऊंगी, ना मैं पानी पीऊंगी, ना मैं कंघी करूंगी, ना मैं साए में बैठूंगी। अबू जहल के ये करीबी रिश्तेदार थे। अबू जहल और एक और आदमी मदीने गए हजरत अय्याश रजी अल्लाह अन्हु को लेने के लिए। अय्याश आप तो यहाँ आके मुसलमान आके बैठ गए, वालदा कसम खा चुकी। हजरत अय्याश रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से मशवरा किया कि ऐसे ऐसे वालदा कसम खा चुकी। हजरत उमर ने फरमाया अय्याश, जब तेरी माँ को जुएं काटेगी ना तो कंघी करेगी, जब भूख लगेगी तो खाना खाएगी, जब धूप लगेगी तो साए में बैठेगी, जब प्यास सताएगी तो पानी। आप वापस मक्के ना जाओ, इस्लाम से महरूम हो जाओगे। अबू जहल ने फिर उकसाया, अय्याश तेरी माँ मर जाएगी, तो माँ का कातिल बन जाएगा, लोग क्या कहेंगे? फिर उसने हजरत उमर से मशवरा किया। हजरत उमर ने फरमाया अय्याश तुम ना जाओ, तुम इस्लाम से महरूम हो जाओगे। खैर बहरहाल उसने फिर इसरार किया तो हजरत उमर ने इजाजत दे दी और अपनी ऊँटनी उनको दी। ये ऊँटनी बहुत उम्दा है, अगर तुम्हें कहीं खतरा मालूम हो तो ऊँटनी पे बैठकर वापस मदीने आ जाना। जब काफी सफर तय हो गया, अबू जहल कहने लगा अय्याश तुम्हारी ऊँटनी बहुत अच्छी है। कि हाँ जी अच्छी है, कि मैं भी इसके पीछे बैठ जाऊं आपके साथ? के बैठ जाओ। उनको पीछे से दोनों हाथ पकड़ लिए और रास्ते में इतनी तकलीफें दी और इतना सताया कि वो उसको मजबूर कर दिया कि तुम इस्लाम को छोड़ दो, हत्ता कि वो मुर्तद हो गए। जो खतरा था वो पहुंच गया। मक्के वालदा से मिले। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फिक्रमंद थे। अय्याश रजी अल्लाह अन्हु गए लेकिन वापस नहीं आए, पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने किसी चीज पे लिख के भेजा कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। वो पढ़ते थे और फिक्र अल्लाह ने उनके दिल में डाला। उसी ऊँटनी पे बैठकर मक्के से मदीने आ गए और दोबारा कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए। एक आदमी को जहन्नम से बचाने के लिए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, ये मेहनत है, ये जिम्मेदारी है। इसलिए फरमाया कि हजरत साहब कराम ने 13 साल तक तो यहाँ मुजाहिदे किए। पहले वजूद दावत है, फिर वक्फा तरबियत है, फिर इजहार नुसरत है, फिर फैसला कुदरत है।
जब दावत की मेहनत शुरू करेंगे तो दावत का वजूद बन जाएगा। वक्फा तरबियत के ज़माने में मुजाहिदे और मुशक्क़तें उठानी पड़ती हैं, चाहे दीन की लाइन हो या दुनिया की लाइन हो। ये जो तालिब इल्म मदरसे में पढ़ते हैं तो पढ़ने के ज़माने में ज़राबो यजरेबो के रट लगानी पड़ती है, उस्तादों के डंडे भी पड़ते हैं और दोस्तों बुजुर्गों भाइयों और कान भी पकड़वाते हैं। जिस लाइन की जिल्लतें नहीं उठा सकते, उस लाइन की इज्जतें नहीं पा सकते, और जिस लाइन की मुशक्क़तें नहीं उठा सकते, उस लाइन की राहतें नहीं पा सकते। आजमाइश आती है तरक्की के लिए, फिर मदद आती है तसल्ली के लिए। आजमाइश आ जाए तो घबराना नहीं और मदद आ जाए तो इतराना नहीं। सहाबा कराम ने 13 साल तक मार खाई है मक्के में, ऐसे दीन दुनिया में नहीं फैला। इसके बाद फिर इज़हार नुसरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मक्के से मदीने हिजरत की। हजूर 14 दिन तो कुबा में ठहरे,